Okay, so I will be doing the last word problems, question 8 to 11. These are very important and these are more application based questions. So let's see, starting from question number 8. It says a theater has 32 rows of seats, right? So total number of seats are given. So I can say n is given 32, right? Because total seats are 32. Then it says if there are 26 seats in the first row, okay, 26 in first, 30 in second row, okay, different rows are there, remember 32 rows are there, that means 32 patterns are there, and first is 26, second is 30, third is 34, 34, and so on. How many seats are there in all? They are saying how many seats are there in all. Rows we know that there are 32. फर्स्ट रो में 26 है, सेकेंड रो में 30 है, थर्ड रो में 34 है. तो दे आर नॉट आस्किंग, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि टोटल तो हमें दिए हुए 32 रोज है. नो, दे आर नॉट आस्किंग रोज, दे आर आस्किंग सीट्स कितनी है हर एक रो में. तो दैट मीन्स दे आर आस्किंग सम, राइट. एंड सम ऑफ हाउ मेनी? सम ऑफ 32 रोज, राइट, उतनी सीट्स का. सो एन हमें पता है. सो ए वी नो विच इज़ 26, डी वी नो, that is common difference 30 minus 26, second term minus first term, and we know n as well, which is 32. So we just have to apply the sum formula. So इस question में the tricky part was to understand कि क्या a है, क्या n है, क्या d है. n ही पता होना चाहिए, that total is 32. So we have n as 32, a as 26, and n as 32, and d as 4. So 32 divided by 2, 16, then 52 plus 31 into 4 is 124. Then we just add these two terms, which are 124 and 52. So we are getting 1676 multiplied by 16, which is 2816. So sum of 32 रोज का हमने निकाल लिया कि टोटल सीट्स कितनी है. टोटल सीट्स आर 2816 सीट्स. ओके, इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू सी दैट दिस इज एन एंड आपको सम 32 का निकालना था. लेट्स सी द नाइन्थ वन. नाइन्थ वन सेज देयर आर 20 rows of seats in a concert hall. So they are giving n as 20. So 20 rows are there. 25 seats in the first row, so 25. 27 in the second, 27, 29 in the third row, 29. 2 से increase हो रहा है. If the price per ticket is $32, how much will be the total sales for one night concert if all the seats are taken? Rows कितनी है? 20. There are how many terms? 20 ना. सो पहले हमें सीट्स निकालनी पड़ेंगी, टोटल कितनी है, तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे. यस और नो? टोटल टिकट्स कितनी हुई हैं? फर्स्ट रो में देर आर 25 सीट्स फुली बुक्ड, देन 27, देन 29. इन शॉर्ट हमें निकालना पड़ेगा कि 20 रोज में टोटल टिकट्स कितनी है. सम ऑफ 20, सो विच इज n by 2, 2a plus n minus 1 d. n is how much? 20. a is how much? 25. d is how much? Second minus first, which is 27 minus 25, which is 2. So 2 multiplied by 25, n is 20, d is 2. So we have 10, 50 plus 19 into 2, which is 38. So 88 into 10 is equals to 880. So 880 tickets total sell हुई है. एंड वन का कॉस्ट कितना है? $32, वन टिकट. एंड वी हैव टू फाइंड फॉर 880 टिकट्स. सो 880 टिकट्स टोटल कॉन्सर्ट का हमारा प्राइस आ जाएगा कि फुल ऑक्यूपेंसी में हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 28160. सो $28160 इज़ द टोटल कॉस्ट. देन लेट्स सी क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 8 and 9 वर वेरी सिमिलर, बट इसमें बस प्राइस इन्वॉल्व हो गया, तो 9th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन डू दिस इन कॉन्सेप्ट एज वेल. राइट द क्वेश्चन एंड देन द आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी क्वेश्चन 10.
It says how many terms? That means we don't know n. Of the arithmetic sequence 1357, 1357 and so on will give the sum as 961. So sum is already given 961 and first term is 1. Difference is 3 minus 1 which is 2, right? And we don't know कि n क्या है. So हम apply करेंगे first formula ही. Why we are not applying the second formula of sun? Because हमारे पास last term ही नहीं है. So n is we don't know. हमें sum पता है कि 961 है तो मैंने बस इसके नीचे 961 लिख दिया. 2a 2 into 1 plus n minus 1 d is 2. So 961 is equals to n by 2. 2 plus 2 times n minus 2 times 1. 2 minus 2 is 0. 2n. n by 2 is equals to 961. अब क्या होगा? अब ना यहाँ पे 2n इंटू n क्या होता है? ये सॉल्विंग पार्ट से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. 2n इंटू एन इज 2n स्क्वायर. n इंटू एन इज n स्क्वायर. फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2n square is equals to 961 into 2. 961 into 2 which is 1922. यहाँ पे 2 multiply हो रहा है. So over there it will get divided. So I'm getting 961. 961 अगर n square 961 है तो square अगर 961 है तो root क्या होगा? It is coming out to be 31. मतलब total 31 टर्म्स है. तो इसमें सब कुछ दिया हुआ था. ए डी एवरीथिंग वाज गिवन. इवन सम वाज गिवन. आपको बस n निकालना है फॉर्मूला में पुट करके. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट विच इज 11th. हाउ मेनी टर्म्स अगेन? सो n इज वी डोंट नो. ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 4 6 8 and so on will give a sum of 600. So sum is already given 600 and a is 2, d is 2, right? And sum we don't know, so we need to calculate. Sorry, sum we know 600 and we need to calculate. So again n by 2, 2a plus n minus 1 d. n we don't know, sum we know 600. 2 into 2 4, a जो है वो 2 है. Then n minus 1 again, d is 2. So 600 is equals to n by 2. 2 into n, 2n, 2. 4 minus 2 is 2 is equals to 600. देखो इसका शॉर्टकट है. पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो. n इंटू 2 इज 2n. ठीक है. एंड n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर अपॉन n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2n plus 2n square is equal to 600 into 2 which is 1200. ठीक है. So this is 1200. अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई एक टर्म नहीं है. हमारे पास n स्क्वायर भी है और n भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी टर्म्स में 2 कॉमन है. सो यहाँ 2 से सबको रिड्यूस कर दो. आप कर सकते हो. n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600. ठीक है. नाउ वी विल हैव टू डू मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्योंकि n स्क्वायर है, n है, वी हैव n एंड 600 उधर जाके माइनस हुआ. या तो क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दो, वो जो b स्क्वायर माइनस 4ac था, या फिर आपको वही करना पड़ेगा विच इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? क्योंकि एक रिजेक्ट होएगा टर्म. मैं आपको बताती हूँ हाउ विल डू इट. मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए वी नीड टू फाइंड जिसका प्रोडक्ट जो है वो -600 हो और सम जो है वो 1 हो. सो वी नीड टू थिंक 6 times 100, राइट? एंड सो ऑन. 8 9 10 सारे यू नीड टू थिंक कि किसका प्रोडक्ट करें सो दैट प्रोडक्ट इज़ +1 and product is 600 and sum is 1. So think of 2 terms which will give you this. 6 into 100 not at all, then 2 no, then we'll have to do another. Now we have done any mistake, let me check. 2 4 6 8 a 2 है,
difference is also 2, sum is 600, right? 600, n by 2, 2a, 2 into 2 is 4, n minus 1, and d, 2n minus 2, 4 minus 2 is 2, n by 2, 2n plus 2n square is equals to 1200, minus 600 is equals to 0. क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देते हैं. d is equals to b square minus 4ac. b is 1, a is 1, c is minus 600. 1 plus, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2400 विच इज़ 2401. तो हमारे जो आंसर्स होते थे वो होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी इज़ 1 प्लस माइनस रूट डी, रूट ऑफ 2401 अपॉन 2a. 2 इंटू 1 इज़ 2. सो 2401 का स्क्वायर रूट करते हैं. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 49. सो वी हैव, अब हमने ये क्वाड्रेटिक क्यों अप्लाई करा? क्वाड्रेटिक इसलिए अप्लाई किया क्योंकि MTS वी वर नॉट गेटिंग. सो लेट मी सी जस्ट अ सेकेंड. 2401 आ रहा था 49 का. आई जस्ट ओपन. या सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2401 इज़ 49 अपॉन 2. एक बार ही माइनस 1 49 बाई 2 और एक बार माइनस. सो वी हैव 48 बाई 2 एंड माइनस 50 बाई 2. तो ये तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा. वी हैव 24 as the term. So 24 is the final answer, 24 terms. Simple as that.